آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر کیا دیکھے۔ آنکھ والے تو تماشا دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک شعر اگر اجازت ہو تو میں سنا دوں آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جس صفت سے دیکھا وہی صفت نظر آئی۔ ایک مرتبہ ابو جہل نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے محمد تجھ سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ معاذ اللہ، صدقتا، آقا نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر سے آقا فرماتے ہیں صدقتا، آپ نے بھی سچ کہا۔ ابو بکر چاہے بدصورت تو آقا فرمائے تو بھی سچ کہتا ہے، اور اگر ابو جہل کہے بدصورت تو آقا فرمائے تو بھی سچ کہتا، اور اگر ابو بکر سب سے زیادہ حسین و جمیل کہے تو آقا فرماتے تو بھی سچ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ سچ کہتا ہے۔ تو یہ ہوا کیوں؟ رخ نبی ہے جمال خدا کا آئینہ، رخ نبی ہے جمال خدا کا آئینہ، جو جیسا ہو اسے، جو جیسا ہو اسے ویسا دکھائی دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو جیسا ہو اسے ویسا دکھائی دیتا ہے، نظر کو نور کا دریا دکھائی دیتا ہے، جہاں رسول کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشیاں منانا، قرآن کریم کی وہ آیت ایک تلاوت کی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ایک ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ کے فضل اس کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ کا فضل اور سب سے بڑی رحمت جس کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ جیسا خدا 18,000 عالموں کا رب ہے ویسے ہی مصطفیٰ کی ذات 18,000 عالموں کے لیے رحمت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی نعمت، اور خدا نے فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، چرچے کرو۔ بولے صاحب چرچے کرنے کا ذکر تم نے یہ کون سا نکالا؟ تو قرآن کریم میں کہتے ہیں نا کہ جلوس نکالنا، گھروں کو سجانا، یہ چرچے کرنا۔ ارے نبی کی ولادت ہوئی ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو۔ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نبی کی ولادت پر روزے لکھنا کہاں، روزے رکھنا کہاں لکھا؟ بولے صاحب ابو بکر نے نہیں منایا، عمر نے نہیں منایا، عثمان نے نہیں منایا، انہوں نے نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ تو دیکھو کوئی کار خیر اگر کسی عظیم ذات نے نہ کیا ہو، اسے اگر کوئی آدمی بھی کرے تو ناجائز تو نہیں ہو جاتا۔ اچھا کام کسی اچھی ذات کے نہ کرنے سے غلط نہیں ہوتا، اور برا کام اور اچھا ہی کام کسی بری ذات کے کرنے سے برا بھی نہیں ہوتا۔ اچھا اگر اچھا نہ کرے تب بھی برا نہیں، اور اچھا اگر برا کر لے تب بھی برا نہیں۔ جیسے کوئی کافر ہے نماز پڑھنے لگا، یا مثال کے طور پر فرقہ باطلہ، وہ ہیں ایک اہل قرآن فرقہ، 3 وقت کی نماز والا، بولے صاحب ہم تو قرآن کی مانیں گے، صرف قرآن کی، قرآن کے علاوہ کسی کی نہیں۔ بولے قرآن میں 3 وقت کی نماز کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ بولے دن کے دونوں حصوں میں نماز پڑھو، وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ
रात के कुछ झुलपुले में। बोले 3 वक्त की नमाज का जिक्र है, चौथी वक्त का नमाज का जिक्र, 5वीं का जिक्र कुरान में है ही नहीं। तो बोले साहब मन की अगर नबी पाक सल्लम की हदीस ला रहे, बोले नहीं, कुछ नहीं, कुरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुरान। माना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब कुछ भी तो कुरान नहीं है ना। हर आदमी के बस की है कुरान पढ़ना। कुरान के अलावा किसी की नहीं मानोगे तो फिर हर आदमी कुरान पढ़े, कुरान की तफसीर को सीखे। मौलाना की भी क्यों मानता है? फरमान तो टूट गया, मौलाना की मान ली तो कुरान की कर। मौलाना की मान चुके हो। बोले 3 वक्त की नमाज कितनी पढ़ते हो? बोले किसी वक्त में 4, किसी में 3। इसका जिक्र कहां है कुरान में कि 3 वक्त की पढ़ी है, 4 वक्त की पढ़ी? एक रकात पढ़ने का जिक्र भी कुरान में नहीं है कि 1 रकात पढ़ना है या 2 रकात पढ़ना। कुरान के किसी आयत से ये साबित नहीं होती कि 3 पढ़ी जाए या 2 पढ़ी जाए या 4 पढ़ी जाए, नहीं है कुरान करीम की किसी आयत में। तो फिर अगर तुम 2 पढ़ते हो या 3 पढ़ते हो या 4 पढ़ते हो तो फिर ये कहां से लाते हो? ये तो कुरान में है नहीं, ये तो कुरान में है ही नहीं, फिर ये कहां से आई? बदल गया हुक्म, बदल गया नहीं। कुरान जबान कुछ थी, बोल कुछ, फेल कुछ, हाल कुछ, हाल कुछ। कहते हैं कुरान के अलावा नहीं मानेंगे, तो बोलो कुरान की मानो। कुरान ने ये कहा कि 3 पढ़ियो या 2 पढ़ियो या 4 पढ़ियो। बहरहाल वो छोड़िए, मकसद मेरा वो बताना नहीं। मिलाद के ताल्लुक से बात चल रही है। मिलाद कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने, हम जलसा कराते हैं, इतने बड़े जलसे को सजाने की क्या जरूरत है? कह सकता कोई आदमी सुबह बातें याद करके लेकर जाना। कुरान करीम की एक आयत है, वतलु मा उन्ज़िला इलैका मिनल किताब, जो चीज आपकी तरफ वही की गई है उसकी तिलावत कीजिए। मतलब है कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए। अब कुरान में यह कहां लिखा कि फजर के बाद करना या जोहर के बाद करना? कुरान में यह कहां लिखा कि बैठ के करो या खड़े होकर करो? कुरान में यह कहां लिखा है कि चल फिर क्या करना या रुक के खड़े होकर करना? कुरान में ये कहां लिखा कि लेट के करना या बैठ के करना? कुरान करीम में ये कहां लिखा कि दिन में करना या रात में करना? बस इतना तो मिलता है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। और अगर हद से अकबर लाहक हो गया है, लायक हुआ है, तो फिर उस सूरत में कुरान की तिलावत की भी इजाजत नहीं है। तो कुरान करीम में मुतलकन है कि कुरान की तिलावत करो। अब बादे असर करो तब भी सवाब, बादे फजर करो तब भी सवाब, बादे असर करो तब भी सवाब, बादे जोहर करो तब भी सवाब, बादे इशा करो तब भी सवाब, बैठ कर करो तब भी सवाब, खड़े होकर करो तब भी सवाब, लेट कर करो तब भी सवाब, नमाज में करो तब भी सवाब, खारिज नमाज करो तब भी सवाब, रात में करो तब भी सवाब, दिन में करो तब भी सवाब, चल के करो तब भी सवाब, बैठ के करो तब भी सवाब, हदर में करो तब भी सवाब, सफर में करो तब भी सवाब, देख कर करो तब भी सवाब, बगैर देखे करो तब भी सवाब। कुरान की तिलावत का हुक्म मुतलकन है, वल मुतलकु यजरी अला इतलाक़िही, और मुतलक अपने हुक्म के मुतलक एतबार से इतलाक पर जारी होता है, यानी उसके हुक्म में मुक़य्यद नहीं किया जाता उसके हुक्म को। तो जब यहाँ हुक्म मुतलकन है तो कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू, इसमें भी हुक्म मुतलकन है कि खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ खुदा के फजल उसकी रहमत पर। हुक्म ये नहीं है कि बैठकर मनाओ, हुक्म ये भी नहीं है कि खड़े होकर मनाओ, हुक्म ये भी नहीं है कि जलसा करके मनाओ, हुक्म ये भी नहीं है कि दावत खिला के मनाओ, हुक्म ये भी नहीं कि कुरान की तिलावत करके मनाओ, हुक्म ये भी नहीं है कि दोस्त अहबाब को जमा करके मनाओ, हुक्म ये भी नहीं है कि लाइटिंग करके मनाओ, हुक्म ये भी नहीं है कि नबी की मिलाद बयान करके मनाओ, बल्कि हुक्म वतलु मा हुया इलैका मिनल किताब में भी मुतलकन है, यहाँ भी मुतलकन है। तो जब वहाँ सवाब बैठ के करे तब सवाब, खड़े होकर करे तब सवाब, सोच लेट के करे तब सवाब, चलते में करे सब सवाब, हदर में करे तब सवाब, सफर में करे तब सवाब, बातें असर करे तब सवाब, बातें मगरिब करे तब सवाब, बातें नमाज करे तब सवाब, ईशा के बाद करे तब सवाब, दिन में करे तब सवाब, रात में करे तब सवाब। तो जैसे उस तिलावत में जब करो सवाब, ऐसे ही मिलाद मुस्तफा अगर जायज तरीके से मनाओ तो मिलाद में मिलाद मुस्तफा करके मनाओ तब सवाब, खाना खिलाकर दोस्तों अहबाब को मनाओ तब सवाब, अगर हजर में मनाओ, रोशनी करके घरों में चढ़ावा करके मनाओ तब सवाब, गरीबों को कपड़े बना
कर बनाओ तब सवाब, गरीबों की इमदाद करके मनाओ तब सवाब, मिलाद मुस्तफा की खुशी में घर में कुरान खाने कराओ तब सवाब, लोग रखो तब सवाब, किसी गरीब बेटी की शादी कर दो तब सवाब। जैसे हुक्म मुतलकन वहाँ था तो सवाब, ऐसे ही हुक्म मुतलकन यहाँ है तब भी सवाब। तो हुक्म ना मुक़य्यद वहाँ था और ना यहाँ है, तो जो हुक्म उसका है वही हुक्म इसका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस नारे वारे अब धागा मत लगाओ, बस दो बातें बताकर खत्म कर रहे हैं बात को। सहाबा किराम ने मनाया नहीं, ये नहीं, ये बता दूं मैं तुम्हें। अब यहाँ कुरान करीम में जब हुक्म मुतलकन मिल गया कि साहब वत्लु मा उहिया इलैका मिनल किताब, कुरान की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई। अब उसमें हुक्म मुक़य्यद तो नहीं है, हुक्म ये तो नहीं है कि बैठ कर करो, उलमा किराम है इनसे पूछिएगा, ये तो नहीं है बैठ कर करो, ये भी नहीं है कि हज़र में करो, ये भी नहीं है सफर में करो। तो सफर में करोगे तब सवाब, हज़र में करोगे तब सवाब। तो मुक़य्यद अगर वहां नहीं किया तो यहां मुक़य्यद क्यों हो गया? वहां मुक़य्यद नहीं है तो यहां मुक़य्यद क्यों किया जा रहा है? और मुक़य्यद का बिल्कुल ही पत्ता साफ किया जा रहा। कहा जाता सहाबा किराम ने क्या मनाया था। अल्लामा उमर अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, बहुत बड़े मुहद्दिस, रईसुल मुहद्दिसीन कहा जाता। अत-तनवीर फी मौलिदिल बशीर, एक किताब के अंदर रिवायत करते हैं, रसूलुल कलाम एक किताब, उसके अंदर रिवायत मौजूद, मिलाद मुस्तफा की शरई हैसियत उसके अंदर रिवायत मौजूद कि एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के मौके पर पीर के दिन, आका की विलादत किस दिन हुई? बोलो पीछे सभी। पीर के दिन वक्त क्या था? सुबह सादिक। सुबह सादिक में क्यों हुई थी? ना दिन ना रात। तो इसलिए आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जमानों के लिए, सारे आलमों के लिए रहमत बनकर आए थे। अगर दिन में होते तो दिन कहता कि रात तेरी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए कि आका मुझ में तशरीफ लाए। अगर रात में आते तो रात ये कहती कि दिन तेरी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए कि आका मुझ में तशरीफ लाए। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी न दिन में हुई न रात में, कहा कि रात जाते जाते और दिन आते आते मुस्तफा का दीदार कर। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अपने घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर पीर के दिन घर वालों की, रिश्तेदार, अजीज व अकारिब की, महल्ले वालों की दावत करते हैं, खाना खिलाते हैं। दावत में खाना, सिर्फ जलसा सुनने की दावत नहीं, खाने की दावत, जिसका कुछ इंतजाम मिलाद की हमारी गुलिस्तान अहले सुन्नत कमेटी ने भी किया, खास लोगों के लिए। अल्लाह ताला और तरक्की अता फरमाए और पूरे शहर को खिलाए नबी की मोहब्बत में। आमीन तो कह दो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्ला अपने घर में दोस्तों अहबाब की, अजीज़ व अकारिब की, महल्ले वालों की दावत की। दावत करने के बाद दावत बाद में पहले जिक्र मिलाद। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास खड़े हुए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास खड़े हुए। खड़े होने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के आसार बयान करने लगे कि कैसे आदम यानस में आए, शीश में आए, शीश से कैसे यानस में आए, पूरे हालात जिंदगी मुख्तसर तौर पर, विलादत के आसार मुख्तसर तौर पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान कर रहे हैं। इत्तेफाक की बात आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घूमते घूमते उधर ही पहुंच गए। सुभान अल्लाह। नबी का मिलाद सहाबी बयान करे और आका खुद सुनने लगे। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सुन रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान कर रहे हैं, आका ने भी सुना। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के बाद सामने तशरीफ लाए। आका ने देखा कि सहाबा
मुस्तगरक हो चुके नबी की बारगाह में कैसे किस तरीके से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि मेरा जिक्र सुनते सुनते हजरत आदम की तरफ नजर दौड़ाते तो सोचते हैं कि आदम नबी के सामने कुछ भी नहीं है, नबी के सामने नूह की तरफ नजर दौड़ाते तो सोच लेते हैं कि अगर नबी ना होते तो आदम भी ना होते, नूह भी ना होते, शीश भी ना होते, कोई ना होता, कायनात का कोई जर्रा ना होता। गश गश करने लगे सारे के सारे शिहाबा, सबके खुशी और जोश में, मसरत में, आका जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में झूमने लगे और झूमने लगे, ऐसे झूमे कि आका का जरिए रहमत जोश में आया। फरमाया मेरे शिहाबा, अगर तुमने आज मिलाद किया है और मिलाद करने के साथ साथ में महल्ले वालों की दावत भी की है तो सुन लो, हल नस्लकुम शफाअती, तुम्हारी सबके लिए मेरी शफाअत हयात, शफाअत हलाल हो गई। मिलाद करने वालों के लिए, मिलाद में शरीक होने वालों के लिए शफाअत। हम भी इसी उम्मीद में बैठे हैं कि अगर आका दरिया का दरिया रहमत जोश में आए, आका का दरिया रहमत जोश में आए और वो मुद्दा हमारे लिए भी सुनने को हशर के मैदान में मिल जाए तो हमारा भी बेड़ा पार हो। एक रिवायत और सुन ले, बात खत्म कर। इसको भी पिछली किताबों के हवाले जो मैंने दिए हैं उन्हीं में लिखा है। एक सिहाबी रसूल हैं हजरत आमिर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा अबू दरदा हाजिर हुए। पीर का दिन, कौन सा दिन? डाउन होने लगी बैठती है। पीर का दिन आका की बारगाह में हाजिर हुए अबू दरदा। अबू दरदा जियारत करके फारिग होने के बाद आका की बारगाह में बैठ गए। नबी ने फरमाया, अबू दरदा कोई काम तो नहीं है? आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह हुक्म फरमाइए, क्या आपकी बारगाह में रहने के लिए तो बड़े से बड़ा भी काम छोड़ सकता हूँ, आपके दीदार से मुशर्रफ होने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दरदा से फरमाया, अबू दरदा चलो आज मदीने की गलियों में घूमने चलते हैं। कितनी प्यारी प्यारी गलियां होंगी जिसमें आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक मुबारक कदमों से चले थे। मदीने की गलियों में चलो घूमने के लिए चलते हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में अबू दरदा आगे नबी पीछे पीछे अबू दरदा। चलते चलते आमिर अंसारी के घर के पास पहुंच गए। सुभान अल्लाह। आमिर अंसारी के घर पहुंचे। आमिर अंसारी के घर जब पहुंचे तो आमिर अंसारी के घर कान लगाकर आवाज सुनी तो आमिर अंसारी कह रहे हैं, हादल यौम वुलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही प्यारा दिन है कि जिसमें आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आका ने अपना मिलाद अपने प्यारे जानी साहब सियाबी से अपने कानों से सुन लिया। कितना प्यारा मिलाद होगा हमारा मिलाद, उस मिलाद को कहां पहुंच सकता। अरे हम तो बहुत छोटा मिलाद मनाते, नबी का वो मिलाद जो सहाबा ने मनाया होगा उसकी अजमत के क्या कहने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सुना। हजरत आमिर अंसारी अपने घर वालों से मिलाद मुस्तफा बयान कर रहे हैं, मिलाद मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं। हाज़िल यौम वुलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वही दिन है कि जिसमें आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लेकर गए। आमिर अंसारी ने देखा, सलाम अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए, क्या हुक्म है? आका आप का मिलाद बयान कर रहा था, कोई गलत काम तो नहीं था, क्या जायज या नाजायज है, क्या कोई गलत काम है? आका ने फरमाया, ए आमिर अंसारी, इन्नल्लाह फतह लका अबवाबल रहमती, ए आमिर अंसारी इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने तुझ पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। इन्नल्लाह फतह लका अबवाबल रहमा, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के दरवाजे तेरे लिए खोल दिए। किस वजह से? इस मिलाद की वजह से। इस मिलाद की वजह से तेरे लिए अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। उसके बाद में आगे फरमाते हैं, लउल वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरूना लका,
اے عامر انصاری معاملہ یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی فرشتے ہیں سارے کے سارے فرشتے تیرے لیے اور میلاد منانے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ عامر انصاری پوچھ بیٹھے یا رسول اللہ یہ حکم میرے لیے ہے یا قیامت تک؟ تمہارے بعد میں، میرے بعد میں، آپ کے زمانے کے بعد میں تمہارے دیوانے اور بھی پیدا ہوں گے جو میلاد منائیں گے، تو کیا وہ بھی اس حکم میں داخل رہیں گے؟ آقا نے فرمایا من فعل ذلک یوم القیامہ، جو بھی قیامت تک میرا میلاد مناتا رہے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بھی کھولتا رہے گا، فرشتے بھی دعا کرتے رہیں گے۔ وما علیک الا البلاغ۔ السلام علیکم۔